Hello, guys, and welcome to Cricket Caviar. India has taken the lead of 2-1 in the series versus South Africa, and it was Tilak Verma's 100 that has led India to a massive win because this series was 1-1, and today India were under the pressure with Sanju Samson getting out in the first over. And let me tell you guys, this pitch was one of the weirdest pitch that I have seen. It had variable bounce. Everyone was calling it a flat pitch that you there are smaller boundaries, the air is thin, you are up in the mountains, you're in the high belt region, and the air is very thin. But this was a very, very tricky pitch. I mean, the ball that got Sanju, it was such an unlucky bounce that, it sneaked through under his bat. And after that, Tilak Verma came. It was an promotion for him because normally Sky comes at number three, and I was quite disappointed. Like, why Tilak was sent ahead of Sky. But what problem I used to have with Tilak Verma is his slow starts. Like he's always at 14 of 14 or 14 of 15 before he gets going. And today also, today was a bit different. He actually started with the immediate fall of Sanju's wicket. He was 12 of 3. He got a good start. Still, he was around 14 of 11. And even if you see at the later stage, he was just crawling around. He was 55 of 36, something like that. But after that, the acceleration came. He scored 45 of 15 and reached his 151 balls. And he particularly attacked two bowlers, that was Keshav Maharaj and Gerald Coetzee. He absolutely took them apart. And Gerald Coetzee was so damn poor today. He bowled no ball. He gave sixes on no balls. He bowled six wides and two no balls. Overall, South Africa bowling 13 extra deliveries. South Africa almost bowled two extra overs to India, whereas India just bowled one wide ball. That's it, one extra delivery. So basically, South Africa bowled two more overs than India did, and that proved to be the difference. The extras count is 19 for South Africa and 12 and only 5 for India. So there is a difference of 14 runs and they lost by 11 runs. So extras clearly decided this match. Also, the intent of the South African top order, they have intentionally moved Klassen and Miller out of the top four, and they want Rickelton, Markram, Hendricks to take more responsibility and play with more freedom and allow Klassen and Miller give them a base, in fact, give them a foundation where they can just hit. But that is not happening. And the main reason for that is Aiden Markram. I mean, he has been a story of fall from grace. He's been one of the great players. I mean, he was leader of SRH a few years back, but now, if you see, he's really struggling. And he's not only struggling with his own form, he's struggling with his captaincy. He's also bringing down the form of his other players. Especially today, I saw that Tristan Stubbs, who was coming off in such good form, he also struggled because he was batting with Markram. Yes, Markram did get two sixes of Varun Chakravarti, and today was an off day for Varun Chakravarti. We saw Varun Chakravarti of IPL 2022 comeback. But what Markram is doing is really slowing down the momentum. If you see the partnership with Tristan Stubbs, it's 21 of 20. You can't do that in a match where you're chasing such a big total. And Ryan Rickelton, I can understand he ended up with 20 or 15. I mean, there was a stoppage in play. It was a weird stoppage today. First time I got to know that there are so many insects even outside of India, outside of Asian subcontinent. Like the number of insects were insane, and that actually took some momentum away from South Africa at the start of their innings. But yeah, amazing match from India. Very good bowling from Bishnoi and Arshdeep. At the death was fantastic. Jansen played a good knock, but not enough today for India. And I just want to say that from the starting of the first over, so Sanju Samson actually got that low bounce from Jansen, and it looked like South Africa will dominate this match. Uh, but what a knock from Tilak Verma, and especially the acceleration around 14th and 15th over with Rinku and Pandya not scoring.
the runs that they need to score. So it was great. नितिन, आपने मैच देखा, कैसा लग रहा है ये मैच देख के? इंडिया हैज टेकन द लीड ऑफ 2-1. मतलब मैंने पूरा तो नहीं देखा, पर जो पार्ट मैंने देखा तो जो मुझे अच्छा पार्ट लगा कि तिलक वर्मा को जो हम जानते हैं कि वो स्लो स्टार्ट करते हैं फिर धीरे धीरे बढ़ते हैं, पर उनका जो बीच में एक्सेलरेशन था वो बहुत अच्छा था। दो, अगर मैं ये मानता हूँ कि अगर वो फर्स्ट ओवर में आए तो उनको सेंचुरी 15 या 16 ओवर तक कंप्लीट करना चाहिए था, पर ठीक है 16 और 17 ओवर में किया और अच्छा लगा। एंड जो मेन कंसर्न पॉइंट है वो है रिंकू सिंह का, कि पिछले 5-6 मैच से पता नहीं क्या हो गया उनको, परफॉर्म नहीं कर पा हम्म. रहे हैं, उन पर प्रेशर है ये अमाउंट का या जो भी है। बट हम्म. हाँ, कुछ तो कंसर्न है उनके साथ। द वे ही प्लेइंग, जो शॉट खेल रहे हैं वो उनका नेचुरल गेम नहीं है या जो भी है, हम्म. पर कुछ तो कंसर्न है। राइट. एंड मुझे भी एक्चुअली तिलक का नॉक शुरू में तो बहुत स्लो लगा नितिन, और मुझे भी वही लग रहा था कि जैसा इस पिच के बारे में बोल रहे थे कि 260 चेज हो गया था वेस्ट इंडीज ने. वेस्ट इंडीज चेज डाउन टू, सॉरी, साउथ अफ्रीका ने 260 चेज कर लिया था वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट. और बहुत स्मॉल बाउंड्रीज हैं, बैंगलोर टाइप का ग्राउंड है साउथ अफ्रीका में, हाई ऑल्टीट्यूड वेयर द बॉल ट्रेवल्स वेरी फास्ट. तो ये सब कुछ जब बोल रहे थे तो मुझे लग रहा था इंडिया ने 6 ओवर में 70 अच्छा बनाया, 10 ओवर में 100 रन अच्छा बनाया. तो बीच में मुझे लगा कहीं ना कहीं थोड़ा स्लो डाउन हो गए, बट थैंकफुली मतलब साउथ अफ्रीका के बॉलर्स आज बहुत मेहरबान थे. इतने एक्स्ट्रास दिए, इतने नो बॉल्स दिए, इतने वाइड्स दिए कि हम एक्चुअली 200 बनाना चाहते थे, बट उन्होंने मेक श्योर किया कि हम 220 बना ले. और वहीं पे मुझे लगता है वो हम्म। एक मेजर डिफरेंस हो गया है एक्स्ट्रास का. एंड तिलक्स नॉक वाज ग्रेट. आई मीन, ये जो पिच था इसमें एक ही चैलेंज था, वेरिएबल बाउंस का. और मुझे लगता है साउथ अफ्रीका ने गलत लेंथ बॉलिंग की, क्योंकि उन्होंने बहुत ही फुल डाला. जबकि आपको जैसे वेरिएबल बाउंस चाहिए तो आपको शॉर्ट डालना चाहिए, जो कि अर्शदीप पांड्या इन्होंने किया. एक्चुअली वरुण चक्रवर्ती भी वही ट्राई कर रहा था कि शॉर्ट बॉल डाल डाल के मतलब किसी तरह उसने मार्करम का विकेट ले लिया फिर. लेकिन क्लासन ने उसको एक ओवर में जो 3 छक्के मारे, मुझे तो ऐसा लग रहा था अगर 6 छक्के भी लग सकते थे उस ओवर में. सो वरुण गॉट लकी कि वहां पे उसको 6 छक्के नहीं लगे. बट या स्टिल बहुत अच्छा विन था आज इंडिया के लिए. बट ओवरऑल आप बात करो ना तो पता नहीं, पिछले आप 3-4 मैच देख लो तो डोंट नो कि पांड्या और रिंकू के साथ क्या चल रहा है। दे आर नॉट कंफर्टेबल, उनका पोजीशन सही नहीं हम्म. हो रहा है या कनेक्ट जो भी है, पता नहीं, मतलब वो अपने टच में नहीं है, ना पांड्या है ना रिंकू है। अब उसके हम्म. पीछे क्या रीजन है वो नहीं पता, कि वो आईपीएल का प्रेशर है, कि आपका बैटिंग पोजीशन सही नहीं है, कि आपकी कोचिंग लखनऊ के साथ सही नहीं बैठ रही है, वो नहीं पता। पर हम्म. वो अपने बेस्ट फॉर्म में पांड्या तो को नहीं है, ना क्या पांड्या है प्रेशर ना होगा रिंकू सिंह है। आईपीएल का? वो तो कैप्टन बन चुका है, उसका तो हो ही गया. रिंकू का, हाँ, इट्स मतलब ही गॉट अ बिगर अमाउंट. बट यस, यू आर राइट. मतलब कि पांड्या और रिंकू का मोमेंटम काफी अच्छा नहीं रहा, स्पेशली बहुत लो लास्ट है, मैच तो. बहुत लो है, बहुत लो है। हाँ, बहुत लास्ट मैच तो मतलब पांड्या की वजह से ही हारे वो. 39 ऑफ 45 जो था. तो कैसे भी पिच हो आप मतलब वैसा नहीं कर सकते हो. मतलब साउथ अफ्रीका ने इतना बुरा बैटिंग किया लास्ट मैच में, और वरुण चक्रवर्ती ने 5 विकेट हॉल लिया, फिर भी हम वो मैच हार गए थे. बट हम्म। मुझे तिलक, देखो मुझे आज ऐसा लगा मैच में कि हम स्लो चल रहे थे. मुझे लग रहा था हम बिलो पा रहे हैं. और जैसे लास्ट में बैटिंग हुई है नितिन, मतलब कि लास्ट 10 ओवर्स में जो पार्टनरशिप्स हुए हैं क्लासन और मिलर के, एक्चुअली मुझे लगता है मिलर खा गया आज चेज, क्योंकि उसने 18 ऑफ मिलर में रहा 18 है मारा है. ऑब्वियसली, 18/18। हाँ. हाँ। हाँ, मिलर वो उसका नहीं हो पा रहा है, मतलब समहाउ वो बहुत ज्यादा आउट ऑफ फॉर्म चल रहा है. 18 ऑफ 18 मिलर, और ट्रिस्टन स्टब्स 12 ऑफ 12, और एडन मार्करम भी एक समय पे 14 ऑफ 14 था. तो ये जो मतलब फेज था जिसमें साउथ अफ्रीका ने 45 रन मारे हैं सिर्फ 45 बॉल पे, ये फेज पूरा हर्ट कर हम्म। गया साउथ अफ्रीका को. बिकॉज इफ यू सी द रेस्ट ऑफ द बैट्समैन, मार्को यानसन 54 ऑफ 17 एंड हेनरिक क्लासन 41 ऑफ 22. मतलब ये 95 रन्स जो बने हैं क्लासन और यानसन के, ये तो सिर्फ 39 बॉल्स में बने. सो ऑलमोस्ट क्या 200 का स्ट्राइक रेट है, और क्या ही चाहिए T20 हाँ, में। जो अगर आप कंसिडर करो कि तिलक वर्मा का नॉक आउटस्टैंडिंग था तो उसने भी 151 बॉल्स में मारा है, बट यहाँ पे क्लासन और यानसन ने मिलकर 95 मारा है 39 बॉल्स में. तो डेफिनेटली द हम्म। रीजन फॉर लॉस इज कि मतलब मार्करम, मिलर और
स्टब्स स्टब्स तो चलो उसको मैं ज्यादा ब्लेम नहीं करूंगा क्योंकि वो अच्छा खेल रहे हैं ओवरऑल। वहां पे वो भी मार्करम के साथ मार्करम थोड़ा मेरे को फंस पता गया नहीं था। मार्करम को क्या लगता है कि वो ओपनिंग बैट्समैन तो बिल्कुल नहीं है, बट डोंट नो क्यों हम्म। वो ओपनिंग करने आ जाता है। ही इज नॉट अ ओपनिंग बैट्समैन एट ऑल। हम्म। मतलब वो डिजर्विंग, उसका वही है कोहली का जो सीन है कि हमें वो एंकर वाला रोल करना है। मार्करम का हम्म। सेम सीन है। राइट एंड कैप्टेंसी पे भी उसका मतलब कंट्रोल काफी खराब हो रहा है, जिस तरह से उसने बॉलर्स बहुत को। लम्हा तो बहुत ही खराब था। बहुत ही खराब बॉलिंग, यंग बॉलर्स थे ठीक है मैं मानता हूँ, बट स्टिल मतलब कि गिविंग सो मेनी एक्स्ट्रास। जेराल्ड क्विंसी 17 का इकोनॉमी, सिपामला 11.25 का इकोनॉमी, और सिमला ने जो कि अभी इस सीरीज में हीरो बना हुआ है सूर्य कुमार यादव और रिंकू के विकेट्स लेके भी, उसका भी 11.33 का इकोनॉमी था। तो इन तीनों ने मतलब काफी खराब बॉलिंग की। वो तो मार्को यानसन ने लास्ट ओवर अच्छा किया तो थोड़ा मतलब लिमिट में रहे ये लोग, नहीं तो इट कुड हैव बीन 230 और 240 इजीली। एंड तिलक की थोड़ी तो तारीफ करनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने अभी तक वही बोला है कि जब भी ये मारता है तो लूजिंग कॉज नहीं मारता है, क्योंकि मुंबई इंडियंस के लिए भी हमने हाँ देखा है कि तीन हाँ। फिफ्टीज मारे हैं लूजिंग कॉज में। लेकिन आज बोलना पड़ेगा कि पिच में, वैसे तो काफी इजी पिच था लेकिन वेरिएबल बाउंस को काफी अच्छा मैनेज किया, हाँ क्रॉस वही वो बैटेड। था। हाँ हाँ क्रॉस बैटेड शॉट्स यहाँ पे खेलना था और उसने वही किया। उसका क्रॉस बैटेड शॉट्स, इवन तो मुझे पावर प्ले में समझ नहीं आया कि वो कैसे मतलब वो बार बार अटक जा रहा था, फील्डर्स को फाइंड कर रहा था इवन इन पावर प्ले। बट आई थिंक लास्ट फेज में उसने जो बैटिंग की है, मतलब कि वो 14-15 ओवर जो उसने अटैक किया है, दैट वाज अमेजिंग। तिलक के नहीं बाद मतलब कैसा ये प्लेयर, क्या पिच वैसा ही था ओपिनियन है कि आप आपका? जितना देर खेलोगे आपको उतना बेटर समझ में आएगा। तो उसने टाइम हम्म। दिया, उसने खेला, टाइम लिया, तो एट द एंड वो प्लेयर हो गया कि मुझे कैसा खेलना है वो समझ में आ गया था, जो हम्म। अफ्रीका प्लेयर नहीं कर पाए। बट मेरा मेन कंसर्न इस पूरे सीरीज में 3 मैच से है कि रिंकू सिंह का फॉर्म, जो हम लोग उसे हम्म। एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इंडिया के लिए कि रिंकू सिंह विल बी द हम्म। मैच विनर इन द फ्यूचर वर्ल्ड कप एंड ऑल। पर पता नहीं हम्म। उसको क्या हुआ है, वो आउट ऑफ फॉर्म चल रहा है कम्प्लीटली। राइट, मुझे लगता है थोड़ा पोजीशंस भी रिशफल करना चाहिए, क्योंकि अभी मुझे लग रहा है कि पांड्या को कुछ ज्यादा ही आगे भेज रहे हैं। मतलब कि यस नो डाउट पांड्या इज अ गुड बैटर बट इज अ फिनिशर, मतलब कि उसका रोल जो है वो फिनिशर का है। बट अभी जो सिचुएशन है हार्दिक पांड्या को नंबर 5 पे भेजना, मतलब कि ये बहुत ज्यादा आगे है। डेफिनेटली आप रिंकू अक्सर या इवन रमनदीप को आप इससे आगे भेज सकते हो हार्दिक पांड्या से। तो अक्षर पटेल तो आज आपका वेस्ट ही हो गया एक तरह से, अक्षर की तो, उसने भाई मतलब। अक्षर की तो करियर खराब कर दी इन्होंने, छोड़ो क्या ही बात करना उसके बारे में। तो फिर भाई की उसकी तो करियर ही खा गए ये लोग। हम्म। ना बैटिंग दे रहे हम्म। ना बॉलिंग दे रहे। आज एटलीस्ट इतना गाली पड़ा लास्ट मैच में, तो आज 4 ओवर करवा दिए उसने, 4 ओवर तो करवा तो आज दिए। बॉलर ही ना, आपने आवेश को ड्रॉप कर दिया, बॉलर था ही नहीं आपके पास आज दूसरा, तो मजबूरी था करना आज तो। हाँ रमनदीप ने बॉलिंग किया नहीं, राइट। बट गुड हाँ इंटेंट शोन बाय रमनदीप एंड इट्स अ गुड इट, मतलब डेब्यू पे अगर आप पहले बॉल पे छक्का मार रहे हो तो बहुत अच्छा लगता है, मतलब डेफिनेटली गुड विन फॉर इंडिया ओवरऑल। लेट्स सी गाइस नेक्स्ट मैच में क्या होता है, एंड फ्राइडे को नेक्स्ट मैच है, तो इस पे और हम बात करेंगे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग क्रिकेट कैवियर एंड प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल क्रिकेट कैवियर। थैंक यू नितिन फॉर ज्वाइनिंग। टेक थैंक यू केयर। एवरीवन। बाय।